everyone and welcome back to Competitive Aim. Let us start with our next 25 questions in OB MCQ series. The first question is, according to Wendell and Cassell, which is an element of organization development? Option number A, collaborative management. Option number B, work processes. Option number C, work team. Or option number D, all of these. So here all the options are the elements of organization development. Therefore, the correct answer would be option number D, all of these. Now moving to our next question, which is not correct about nature of leadership? Option number A, ideal conduct. Option number B, leadership is a personal quality. Option number D, dynamic process. Or option number D, unity of accounting. तो लीडरशिप में ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही इंक्लूडेड होते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ अकाउंटिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट. ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स. ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी. ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. तो सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ए बी सी तीनों ही इंक्लूडेड है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टारगेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एज पर ग्रूवर एंड बर्नर्स. ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन मोटिवेशन. ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. ऑप्शन नंबर सी, बेटर परफॉर्मेंस. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. The correct option here is option number D, all of the above. Now next question, question number 80. The approaches to organizational changes are option number A, structural approach. Option number B, value centered approach. Option number C, technological approach. And option number D, all of the above. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में ए बी सी तीनों ही अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल, वैल्यू सेंटर्ड एंड टेक्नोलॉजिकल. देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. अ मोटिव इज डिफाइंड एज. मोटिव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोटिव आपने मोटिवेशन में पढ़ा था, ठीक है. तो मोटिवेशन में हमने मोटिव की डेफिनेशन वहाँ पे कवर की थी. ऑप्शन नंबर ए, अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. ऑप्शन नंबर बी, एन इनर state that energize activities and directs the behavior of individuals toward certain goals. Option number C, an inner state that provide difficult tasks to the player. And option number D, a cost. तो easy question है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, an inner state that energizes, activates and directs the behavior of individual towards certain goal. Now moving to our next question, question number 82. What is contributing to organizations taking a look at employee groups that had previously been overlooked, ignored or shut out? Option number A, current discrimination laws. Option number B, government monetary incentive. Option number C, new behavior management theories. Or option number D, economic pressure. Correct answer here is option number D, economic pressure. Next question, which statement is true? Option number A, the arbitrary setting of goals without taking the environment into consideration often spells doom for the organization. Option number B, the organization can be viewed as a hierarchy of status and power of rules and organizational goals. Option number C, groups are relatively small social units and can be distinguished in terms of such variables as size, differentiation of status and purpose or goals. Option number D, all of the above. So the correct answer here is option number D, all of the above. Now the next question is, which statement is correct about the goal? तो यहाँ पे गोल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन नंबर ए, द गोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 20 कार पर डे इज़ अ टेंजिबल गोल. ऑप्शन नंबर बी,
Developing effective foreign policy is an intangible goal. Option number C, goal may be tangible or intangible, and option number D, all of the above. तो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो टेंजिबल गोल है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव टारगेट दिया है जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। बी जो है हमारा इंटेंजिबल है, क्योंकि इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बनाने का मतलब ये एक क्वालिटेटिव हमको टारगेट दिया हुआ है, इसलिए इंटेंजिबल गोल है। और जो हमारे गोल्स हैं वो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों ही होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 85, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ मेनली कंसर्न विद option number A, studying the limits of adaptability and change of its individuals, option number B, planning, option number C, vouching, option number D, studying the limits of accounting. So here the correct option is option number A, studying the limits of adaptability and change of its individuals. Now moving to our next question given. तो अगर यहाँ पे देखें एक पिरामिड हमें दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट सबसे नीचे बेस पे दिया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर आती हैं नेक्स्ट स्टेज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन उसके ऊपर आती हैं सोशल नीड्स, उसके ऊपर आती है स्टीम नीड्स, और सबसे टॉप मोस्ट नीड है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। द अबव पिरामिड फॉर्म अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो ये जो पिरामिड है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑप्शन नंबर ए, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, ऑप्शन नंबर बी, एल्फर्ड ERG थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी, मुरे मैनिफेस्ट नीड थ्योरी, एंड ऑप्शन नंबर डी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ये पढ़ा था कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में ये 5 नीड्स दी हैं जो एक हायरार्किकल लेवल की तरह हैं। एक नीड को हम सेटिस्फाई करके नेक्स्ट नीड की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वन वे बिजनेसेस कैन बेनिफिट फ्रॉम diversity in the workforce is, option number A, increased popularity, option number B, increased understanding of the marketplace, option number C, increased employee satisfaction, and option number D, minimizing EEOC AA investigation. So here the correct answer is option number D, minimizing EEOC AA investigation. तो जान लेते हैं कि ये EEOC/AA इन्वेस्टिगेशन है क्या। तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल प्लान होता है विच इज इशूड परसुएंट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। और EEOC जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि किसी भी तरीके का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एज के बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, इक्वल पे एक्ट के बेसिस पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई डिसेबल एम्प्लॉई है उसके साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी कंट्रोल प्लान को स्टेबलाइज करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिमाइजिंग EEOC/AA इन्वेस्टिगेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें बताना है कि हम मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस इन कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज मोरल, ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट ऑफ मैनेजरियल एक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेज ऑफ मोटिवेशन एज पर केथ डेविस। ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ द फीलिंग ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर डी, determination of objectives, or option number D, all of the above. So the correct answer here is option number D, all of the above. सभी stages इसमें involve होते हैं। Now moving to our next question, question number 90. Financial incentives include, option number A, insurance, option number B, additional bonus, option number C, participation in profit, or option number D, all of the above. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस, एडिशनल बोनस एंड पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच इज़ द मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन मेथड, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट
रेजोल्यूशन हमने जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था, जिसमें हमने पूरे स्टेजेस पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। लर्निंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर ए स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। लर्निंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्टिमुलस के फॉर्म में हो सकती है, मोटिवेशन के फॉर्म में हो सकती है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी हो सकती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। The functions of informal group consist, option number A, creation of better environment, option number B, determination of norms, option number C, development of cooperation spirit and option number D all of these। तो इनफॉर्मल ग्रुप के फंक्शंस तीनों ही हैं, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ ग्रुप कंसिस्ट, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन है। तो ग्रुप्स के जो टाइप्स हैं वो तीनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। वन ड्रॉबैक टू द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे इज, तो आज की टेक्नोलॉजी जो है उसका एक ड्रॉबैक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट कैन एक्चुअली एक्सेलरेट द स्पीड एट विच क्राइसिस कैन स्ट्राइक अ नेशन, ऑप्शन नंबर बी, इट कैन कीप एम्प्लॉयज़ टू बिजी to stay in touch with their employer and organization, option number C, it can decrease waste and efficiency in organization and option number D, it can reduce the need for familiar methods of communication such as telegraph and faxes। So the correct answer here is option number D। तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है ऑप्शन नंबर डी टेक्नोलॉजी का। Now moving toward next question, question number 96। Which of the following is or are factor of organization theory as per Hodge and Anthony? Option number A work, option number B power and authority, option number C goal और option number D all of these। तो तीनों ही इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Now next question, question number 97 is non-financial incentive consist, option number A goals, option number B participation, option number C effective leadership और option number D all of these। तो तीनों ही हमारे यहाँ पे non financial incentive है, therefore option number D is correct। Now moving toward next question, question number 98। The managerial grid was developed by, option number A Likert Resin, option number B Stanton, option number C Jones, option number D Robert R Black and John S Monton। तो हमने ये पहले ही पढ़ा है कि ब्लैक एंड माउंट ने ये जो मैनेजरियल ग्रिड है वो दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए वाइट थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी एम्फेसिस ऑन सिचुएशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कंटिजेंसी थ्योरी के तीनों ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 100। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिमुलस इनपुट, ऑप्शन नंबर ए रेपिटेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइज। तो स्टिमुलस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिपीटेशन के फॉर्म में हो सकता है, इंटेंसिटी के फॉर्म में हो सकता है, साइज़ के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कॉस्ट के फॉर्म में नहीं होता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप कि इस बार आपका स्कोर अच्छा आया होगा। इतने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। प्लीज़ अपने स्कोर ज़रूर मेंशन किया करिए, इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी अपनी जो गलतियां हैं उसका एहसास होता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर एक जुनून आ जाता है कि हमें इससे अच्छा और परफॉर्म करना है। ओके देन, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।